Assalamualaikum students. Open the book of SST class 7 geography section chapter number 3 main agriculture products of the Muslim world. In this book we study about the different things about the Muslim world. In this chapter we study about the what are the main products produced by the Muslim world in largely. In the products are wool, cotton, sugar, rubber, tea, coffee, cocoa, wheat, rice. Agriculture is the main occupation of the majority of the people living in the Muslim world. Agriculture is main occupation of the Muslim world. Number one, wool. Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially temperate climates. Students, kindly under all the important line which I mark with the pencil, okay, make sure you mark the all the lines, okay. Wool is perhaps still the best textile for ordinary clothing, especially in temperature climates. Some of the higher quality wool in the world comes from sheep, Kazakhstan. The wool from sheep and sometimes goat in Pakistan and Turkey, though much harder and rougher, is perfect for carpet making. The Muslim world supplies about 10% of the world wool. Iran, Afghanistan, Pakistan, Turkey, and Central Asia. Okay, students, wool is the hair of certain mammals. Most of the wool comes from sheep and goats and camels and special for rabbits. वूल जो है जो ऊन वो जो है वो बेसिक जो पाकिस्तान और टर्की में जो वूल जो शीप्स और गोट्स हैं उनसे जो वूल प्रोड्यूस होती है हम जो वूल हासिल करते हैं वो रफ़र होती है, यानी रफ़ होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है, तो उससे जो है वो फिर कारपेट्स बनाने के लिए वो बेस्ट होती है. लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी की वूल होती है वो होती है काज़ाख्स्तान की हाईएस्ट क्वालिटी वूल जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं और अपने जो और डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं. सो बेसिकली द वर्ल्ड बेस्ट वूल इज़ काज़ाख्स्तान्स एंड द फॉर द बेस्ट ऑफ द कारपेट्स इट्स पाकिस्तान एंड टर्की एंड अफगानिस्तान्स वूल. Because there is the different sheep and goats have a rough wool, okay, and whole the Muslim world supply 10% of world wool. 10% हम मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो वूल का 10% सप्लाई करते हैं और स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड से वूल आती है वो है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट. ये वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ से वूल जो है हमें मिलती है. नाउ नेक्स्ट, कॉटन. Cotton needs warm and humid climate. First you write that. Today cotton is one of the most leading agriculture crop. It can be used for many purposes. It can be made into the thinnest and finest of the fabric or luxury heavy canvas for tents and sails. It comfortable to wear in hot climates as it rapidly absorbs moisture and release from the body as sweat. अंडरलाइन. बेसिकली कॉटन का सबसे पहले तो हम कॉटन फील्ड में जो है वो कॉटन ग्रो होती है एज अ कॉटन फ्लावर. फिर हम इन कॉटन बॉल्स को जो है वो पिक करते हैं बाय हैंड. इनको बड़े एहतियात से हम पिक करते हैं और फिर जो इन प्लांट्स में जो कॉटन फ्लावर्स में जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को क्रश करके हम उससे जो है एनिमल की फीड भी बनाते हैं और कुकिंग ऑयल भी बनाते हैं. लेकिन जो
वो जो बॉल है, कॉटन बॉल जो वाइट कलर की है, इससे हम फिर पहले थ्रेड बनाते हैं, देन हम इससे फैब्रिक बनाते हैं। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 20% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन। पूरी मुस्लिम कंट्री जो है दुनिया में, वो सिर्फ 20% कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करती है। ओके, द लीडिंग कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज in the region are Egypt, Pakistan, Turkey, Uzbekistan and Sudan. मुस्लिम कंट्री जो कंट्रीज़ हैं वो 20% करती हैं, और दीज आर द मेन मुस्लिम कंट्रीज़। ओके, इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान एंड सूडान। चाइना इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। दुनिया में चाइना जो है वो नंबर 1 पे है, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। और पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड 4th, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है, 4th प्लेस पे आता है कॉटन को प्रोड्यूस करने में। और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे है कॉटन प्रोड्यूसर। सो वी कैन से दैट cotton is one of the world leading agriculture crops and cotton is the main product of Pakistan, right? मेन क्रॉप है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। Okay, the third main product of the Muslim world is sugar. Brazil is the world largest producer of sugar cane. It produced 33% of all the sugar cane in the world. ब्राज़ील दुनिया का जो है वो नंबर 1 कंट्री है जो 33% शुगर जो है वो प्रोड्यूस करता है दुनिया में। शुगर देखिए, और पाकिस्तान प्रोड्यूस 3.5% ऑफ द होल वर्ल्ड, और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस शुगर। सो पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में 3.5% एनुअली शुगर जो है शुगर प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द पाकिस्तान। शुगर किस तरह प्रोड्यूस हो जाए? सबसे पहले तो शुगर कैन, अच्छा शुगर कैन जो है यानी गन्ने की जो फील्ड आपको ज़रूरत होती है कि गन्ने का जो वेदर होता है वार्म वेट क्लाइमेट, कॉटन के लिए भी वार्म वेट क्लाइमेट चाहिए और शुगर कैन के लिए भी वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल एरिया में। सबसे पहले शुगर कैन ग्रो करता है उसको हम जब, क्योंकि शुगर कैन इज़ बेसिकली अ ग्रास, काइंड ऑफ अ टॉल स्ट्रॉन्ग ग्रास। सबसे पहले तो शुगर कैन को हम क्रश करते हैं, उसका जूस निकालते हैं, देन उस जूस को हम बॉइल्ड करते हैं ह्यूज पैंस में। जब वो उस जूस से स्टीम अप हो जाता है तो जो उसके अंदर जूस का वाटर होता है वो एवोपरेट होकर स्टीम अप हो जाता है, और जो क्रिस्टल बच जाते हैं वो आपकी शुगर बनती है। द थिक स्वीट सिरप इज़ मेड इनटू मोलेसेस फॉर कन्फेक्शनरी केक्स एंड एनिमल्स फूड, और वो मोलेसेस को हम यूज़ करके फिर आगे केक्स और सो ऑन चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, अब जब गन्ने का रस तो हमने, गन्ने का जूस हमने निकाल दिया, शुगर कैन से हमने उसका जूस जो है वो निकाल दिया। अब उस जो बाकी वो जो बचा है उसको कहते हैं बैगस। वो जो गन्ने का एक्स्ट्रा चीज़ बच जाती है, अब जूस निकल गया तो वो हो गया ना, ख़त्म हो गया, उसके अंदर तो अब कुछ ना हुआ, तो वो उसको हम कहते हैं बैगस यानी फोक। जो उसका बैगस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो बैगस है वो फर्नेस यानी भट्टियों के अंदर हीट का काम देता है, और 1 टन बैगस यानी शुगर कैन का जो 1 टन बैगस है ना वो तकरीबन 2 बैरल ऑफ ऑयल तक हीट देता है। सो इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ heat production. Bagasse can also be used for animal food and for making a kind of board used in building ceiling. Bagasse के भी उस मतलब एक तो एनिमल की मतलब ऑयल एज अ हीट प्रोड्यूसर तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा एनिमल्स के यूज़ के लिए भी करते हैं, और बिल्डिंग की सीलिंग्स के बोर्ड बनाने के लिए भी जो है उसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान इज़ ओनली द मुस्लिम कंट्री to produce sugar cane in the world, and Pakistan produced 3.5 of the world sugar. Okay, write this line.
A, a long warm growing season with solar heat and rainfall about 1000 mm. This is the weather condition of शुगर कैन. वेदर शुगर कैन की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो इस तरह होनी चाहिए कि वहाँ पे रेनफॉल भी हो लेकिन वार्म हो, और वो वार्म इस तरह नहीं कि 2-3 महीनों के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए. और कॉटन पे कॉटन नीड्स, राइट देयर, कॉटन नीड्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. वेट, ह्यूमिड की जगह वेट भी आप राइट डाउन कर सकते हैं. The infos are very important. Now turn the page and number 4 product. Rubber. Another important product for the Muslim country. जो rubber है, sorry, Muslim countries produce about 20% of the all world rubber. पूरी दुनिया में जो रबर प्रोड्यूस किया जाता है, मुस्लिम कंट्री जो है वो 20% रबर जो है वो प्रोड्यूस करता है. रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर, और रबर्स है 2 kinds, नेचुरल रबर्स एंड हाफ फ्रॉम द सिंथेटिक रबर्स. सिंथेटिक रबर जो है वो केमिकल्स के उससे होता है, और नेचुरल रबर जिस तरह लुक एट द पिक्चर, ये आप ट्री को कट कर रहे हैं लेकिन कट नहीं कर रहे, आप उसको सिर्फ हल्का सा कट लगा रहे हो, और उस कट से जो है वो ये वाइट कलर का लिक्विड निकलता है. तो इस लिक्विड से आप जो है हम रबर बनाते हैं. नेचुरल रबर इज़ विच यूजुअली कंसिडर द बेटर फॉर द डिफरेंट पर्पजेस than the synthetic variety. It is made from the sap of number of trees which grow in tropical forest. और ये जो जिन trees के sap से, इस liquid को sap of tree कहते हैं, जिन लिए ये tropical forest areas में होते हैं, ठीक है, मतलब ये हर जगह आपको trees नहीं मिलते, ये tropical forest areas में होते हैं. और बेसिकली ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में थे ट्रीज, बट वहाँ से इन 19th century सम ब्रिटिश साइंटिस्ट स्मगल्ड आउट. वहाँ से उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट से इन सीड्स को स्मगल्ड किया साउथ ईस्ट एशिया में, और स्मगल किया साउथ ईस्ट एशिया में, और वहाँ इनको ग्रो किया, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया यानी ट्रॉपिकल एरिया चाहिए होता है. मुस्लिम कंट्रीज 20% प्रोड्यूस करती है. द मेन कंट्री प्रोड्यूसिंग रबर इन द मुस्लिम कंट्री और इन द रीजन मलेशिया, इंडोनेशिया एज वेल म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. बेसिकली अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ये ट्रीज थे, लेकिन वहाँ से जो है 19th century में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे ब्रिटिश ने इसको स्मगल किया साउथ ईस्ट एशिया में. साउथ ईस्ट एशिया हमारा जो हमारे ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये नेचुरल रबर्स के ट्री हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टी. टी ओरिजिनली बुश फ्रॉम चाइना. टी जो है वो आपने देखा होगा कि जो चाइना में और में वहाँ पे बागात हैं, चाय के बागात, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और वहाँ पे उन पत्तों को, उनके जो लीव्स को जब हम तोड़ के फिर उनसे हम चाय बनाते हैं. ओके, द लीव्स ऑफ टी बुश आर पिक्ड बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स. द फर्स्ट टाइनी लीव्स on the tip of a stem are the finest and are the most expensive teas. The coarsest leaves lower down are the main into the cheaper varieties. The leaves are usually fermented that they turn blank. Especially China prefers green tea. Okay, if you see this picture, देखिए अब जब टी के जो फील्ड होते हैं, चाय के खेत, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो किया होता है, तो उस प्लांट के ऊपर जो सबसे ऊपर छोटे छोटे टी लीव्स होते हैं, वो उनसे दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्ती बनती है, और उससे जो है उस टी वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. जो फिर नीचे बाकी लीव्स थोड़े होते हैं उनसे जो है वो लो लेवल टी बनती है, और चाइना फिर उसको फर्मेंट करके उसको ब्लैक किया जाता है, और बेसिकली चाइना में जो है वो ग्रीन टी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है.
अच्छा, अब जो टी लीव्स हैं उसके जो सीड्स हैं उससे उनको इस चीज़ के अलावा दो और चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। एक तो कुकिंग ऑयल के लिए, मतलब उन सीड्स को क्रश करके उनसे ऑयल लिया जाता है, और फिर कॉस्मेटिक में जो आपका हेयर है, हेयर शाइन्स जो होते हैं या हेयर कलर्स होते हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 15% ऑफ वर्ल्ड टी, मतलब मुस्लिम कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और टर्की, दीज आर 4 मुस्लिम कंट्रीज़। ये 15% जो टी है उनको प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं वर्ल्ड में। एंड टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग to drink and to sell in the world, so is another important crop for the Muslim world. Coffee, one of the most valuable agriculture product. Coffee was discovered in Somalia or Ethiopia area. It is said that जो coffee है, coffee beans, कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो सबसे पहले सोमालिया और इथोपिया में इस तरह डिस्कवर हुए कि वो एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों को ना भेड़ों को जिस तरह हम ले जाते हैं बाहर, उनको पत्ते खिलाने, प्लांट्स के उसमें ले जाते हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा, और वो इस तरह ले गया। तो उसने देखा कि उसकी जो शीप्स हैं वो एक प्लांट से ना, इस तरह का वो प्लांट था, इससे ना वो ये इन बीन्स को खा रही थी, और जब वो खाती तो उसके बाद जो उसकी शीप्स हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती, बहुत ज़रा वो एक्टिवली बिहेव, मतलब वो चलने लग जाती। इट वॉज सेड टू हैव बीन फर्स्ट। फिर उसने देखा कि यार ये क्या चीज़ है, फिर उसने कहा कि हम लोगों ने इसको यूज़ किया, और जब हमने इसको यूज़ किया तो उसके बाद हम जब नमाज़ पढ़ते थे तो हम सारी रात या बहुत घंटों बिल्कुल फ्रेशली होके इबादत कर रहे होते थे, क्योंकि जो आप कॉफ़ी है वो आपको बहुत एक्टिव कर देती है एकदम से। अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो एंड इफ़ यू ड्रिंक कप ऑफ कॉफ़ी यू फील वेरी एक्टिव। सो कॉफ़ी बीन्स में ये बात थी। तो फिर इस तरह कॉफ़ी बीन्स जो हैं, जो ग्रीन कलर के थे, वो इस तरह डिस्कवर हुए। फिर इनको ब्राउन किया जाता है, इनको पहले रोस्टेड करके इनको ब्राउन किया जाता है, देन इनको ग्राइंड करके तो फिर इसको जिस तरह हम कॉफ़ी पीते हैं हम बना के इससे पीते हैं। इंडोनेशिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इंडोनेशिया में सब मेन प्रोड्यूसर है, और मुस्लिम कंट्रीज़ ग्रो अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सप्लाई ऑफ कॉफ़ी। मुस्लिम कंट्री जो है वो 15% सप्लाई करती है कॉफ़ी की, और 18% ऑफ ऑल द टी ग्रोन इन द वर्ल्ड इज़ ड्रंकन इन द मुस्लिम कंट्रीज़। जो 18% टी ग्रो होती है दुनिया में, उसमें 18% मुस्लिम कंट्री वो टी जो है वो पीती है। द वर्ड कॉफ़ी कम्स फ्रॉम द अराबिक वर्ड कहवा। जो आपको पता है कि अराबिक में हम चाय को कहवा ही बोलते हैं, क्योंकि जो मिल्क टी है वो हम यूज़ करते हैं, यानी चाय में दूध का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और कंट्रीज़ वो करते हैं, लेकिन अराबियंस जो हैं या टर्किश हैं वो मिल्क टी का प्रेफर नहीं करते। तो जो कहवा अराबिक वर्ड है उससे कॉफ़ी जनरेट हुआ फॉर द कॉफ़ी बीन्स। जो ये दीज आर द क्लस्टर ऑफ कॉफ़ी बीन, और इस तरह कॉफ़ी जो है वो डिस्कवर हुई। नाउ टर्न द पेज and cocoa chocolate is made from cocoa, and cocoa is made from seeds of cocoa pot. This is the cocoa pot. ये जो seeds है, इन seeds से हमें कोको मिलता है और कोको से हमें चॉकलेट मिलती है। one of the favorite food for the kids as well and for the elders as well, but one of the most favorite thing. And the cocoa plant look like this. Have you seen? Yeah. Okay, let me fix it. Okay. When Columbus found the new world of America, the cocoa plant, also known as cocoa, was discovered in Mexico, where cocoa was drink for the nobles. It became very popular during
जब कोलंबस ने फाउंड किया अमेरिका को तो कोको प्लांट जो था वो मैक्सिको में कोको के नाम से डिस्कवर हो चुका था और वहाँ पे बड़े लोग जो हैं नोबल्स वो ये पीते थे। इट बिकेम पॉपुलर ड्रिंक इन यूरोप और 17th सेंचुरी में जो है वो यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गया। चॉकलेट एज स्वीट, चॉकलेट जो है वो एज अ स्वीट 1847 में इन्वेंट हुई थी। 1847 से पहले चॉकलेट एज अ स्वीट कंसिडर नहीं होती थी। कोको इज़ ग्रोन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। कोको जो है अब वेस्ट अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो करती है। इट्स काइंड ऑफ और ये बहुत सी विच बीन्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर इज डू सम कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन, कुछ कॉस्मेटिक और मेडिसिन में यूज़ होती है। और मुस्लिम कंट्रीज़ में इंडोनेशिया एंड मलेशिया प्रोड्यूस अबाउट 80% वर्ल्ड कोको सप्लाई। ये दो वो कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड से पूरी वर्ल्ड में 18% सप्लाई करते हैं कोको की। और फिर उससे आगे हम कोको प्लांट से हम कोको चॉकलेट बनाते हैं और चॉकलेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स nowadays, especially wheat. Very simple. Wheat is the most important food crop for much of the world, especially in temperate lands. जहाँ की लैंड्स जो हैं वो टेम्परेट होती है ना, वहाँ पे वीट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट फूड है। वीट, गंदम, without it no one, like it's very important. Pakistan and Turkey are among the very few nations that grow enough to feed the whole of their population and still have to some left for export. पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान और टर्की वो वाहिद कंट्रीज़ हैं जो इतनी क्रॉप ग्रो करते हैं कि एक तो वो अपनी आबादी को भी खिला सकते हैं और उसके बाद जो रह जाती है उसको बेचते भी, एक्सपोर्ट भी करते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड प्रोड्यूस नियरली 17% ऑफ वर्ल्ड वीट। और इसी तरह मुस्लिम जो आपका मुस्लिम वर्ल्ड है वो 17% होल प्रोडक्शन वर्ल्ड को सप्लाई करता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप राइस। राइस इज़ द ट्रॉपिकल इक्वलेंट ऑफ वीट। राइस भी उसी तरह इक्वलेंट है एंड द अमाउंट ऑफ ग्रोन इज़ ऑल्सो अबाउट द सेम एज वीट। राइस नीड अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। राइस जो है, चावल जो है वो उन इलाकों में ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर और हीट हो, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होगी, एज यूजुअल वार्म एंड वेट क्लाइमेट। चाइना एंड इंडिया आर इजीली द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस, प्रोड्यूसिंग अबाउट 2/3 of the world supply, but the Muslim countries, especially Indonesia and Bangladesh, grow over 18% of total. मतलब बांग्लादेश और इंडोनेशिया जो है वो क्योंकि वार्म वेट एरिया क्लाइमेट है उनका, तो वो 18% जो है दुनिया में सप्लाई करते हैं दोनों कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज़ के उसमें से। और बांग्लादेश जो है वो डिफरेंट काइंड्स के जो राइस को है वो प्रोड्यूस करता है। दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आई होप यू क्लियर इट ऑल, अंडरलाइन ऑल द marked lines. So now in the video part 2 you have seen the fill in the blanks, long question answers and short question answers.